A very good afternoon to each and everyone on this Once Smart Classes YouTube channel. Myself, CMA Mahendra Saini, and today we have a special guest, our speaker, Advocate Pradeep Singh Rawat sir. He is live with us from the Delhi, and our today's session is that topic is an important discussion on the recently 50th GST Council meeting held by the GST Council. तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुए जीएसटी काउंसिल में, तो उसको अपन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने आज सर से रिक्वेस्ट की है ये डिस्कस करने के लिए, और सर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस रिक्वेस्ट इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, एंड इट विल बी ग्रेट फॉर अस एंड आवर व्यूअर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इस चीज को आपने इस चीज में अमल लिया। तो सर, मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं हम। सर, दिस इंस्टीट्यूट इज वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। हमारा इंस्टीट्यूट लास्ट 9 ईयर से सीए, सीएमए और सीएस प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें हमारा फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों मोड में चलता है, और रिकॉर्डेड, ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों फॉर्म में ही चलता है। हर टर्म्स में हम यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सर, ये तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट से टच में है ही। जो स्टूडेंट सीए में बन जाते हैं तो कई प्रैक्टिस में भी है, जॉब में भी है, तो उनका भी हमको अपडेट करना जरूरी है। और कई स्टेक होल्डर जो प्रोफेशनल है, उनकी भी डिमांड आती रहती है कि अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, क्योंकि सर जो प्रेस रिलीज आती है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा वो रहता है, तो अपन इसको एक इजी लैंग्वेज में अपन डिस्क्राइब कर सके, इसके लिए ये आज का हमारा मकसद है इस टॉपिक को रखने का। फिर से मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सर का नाम है Pradeep Singh Rawat. He is an advocate. Sir is a LLB BCom, and sir is a member of Bar Council of Delhi. And sir has a nearly 9 year of experience in advising clients in various indirect tax compliance and litigation matters. Sir also had a rich and hands-on industry experience. He spent his time in the corporate tax functions of multinationals, where he worked and advising various manufacturing, location and managing litigation and internal control and compliances. Sir's practice area includes advising clients in the area of indirect taxation like custom, import, export, DGFT, anti-dumping matters, and GST, cross-border transaction, etc. He also filing his appearance before the quasi-judicial department educating authorities such as GST, VAT, FEMA, Custom, DGFT, Development Commissioner of Ministry of Commerce of EOU and SEZ matters, NDPS Act, Advanced Ruling Authority and Custom and GST matters, Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunals, National Company Law Tribunals. Sir, you have the wide your profile, but मैंने कोशिश की इसको ब्रीफ में बताने के लिए। You have the vast experience in the special indirect taxation matter. I welcome and congratulates to come on this platform, sir. आपकी इजाजत हो तो हम इस आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, and thank you so much for inviting me to your online platform. And I'm grateful, more particularly because this is an coaching institute and a teaching institute where my interest is also a bit to provide whatever knowledge that I've gathered in my profession with students and fellow professionals. I'm grateful that you invited me today to discuss the recommendations of the GST Council, sir. Thank you so much. Yeah, really, it's a great moment for me and everyone who is watching this online and recorded session. हमारा सर जो बात हुई थी, डिस्कस हुई थी, इसको रिकॉर्ड करने का था, बट कुछ हमारे पास डिमांड आई, रिक्वेस्ट आई कुछ प्रोफेशनल की, प्लीज इसको हम लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो समवन मतलब कुछ प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स भी हम लाइव है, तो वो भी इसको सुन रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो मिडल द सेशंस आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो मैं सर से भी डिस्कस कर लूंगा इस चीज को। राइट, जीवन चंद्रा सर also I think join here. Welcome sir, जीवन चंद्रा सर। ओके, तो अभी सर 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, और इसमें कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए काउंसिल के द्वारा, और ये उस मेजर डिस्कशंस को अपन यहाँ पे एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम सर के साथ समझेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये टू वे डिस्कशन ना होकर 3 वे डिस्कशन हो। मैं और सर तो हम डिस्कस करेंगे ही, अगर ऑडियंस और जो व्यूअर्स है हमारे पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि ये 3 वे डिस्कशन हमारा हो सके। मैं और सर इसमें क्वेश्चंस को
आंसर देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा, बाकी सर से लूंगा। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, राइट, क्योंकि यू आर द वेरी मच एक्सपर्ट्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ठीक है, विदाउट डेरी मैं डिस्कस करता हूँ। एक पॉइंट ये है कि इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे अच्छी खबर क्या है हमारे लिए, मतलब प्रोफेशनल के लिए जो प्रैक्टिस में है उनके लिए एक अच्छी खबर क्या है, और बिजनेसमैन के लिए अच्छी खबर यह है कि अब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बड़ी खबर है। जीएसटीआर 9 आपको पता ही है, दिस इज द एनुअल रिटर्न विच इज फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट नॉन टैक्सेबल, आई मीन कंपोजिशन डीलर, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड एनआरटीपी के अलावा इसमें आप ले सकते हो जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इनके अलावा जितने भी टैक्सेबल पर्सन है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड जीएसटीआर 9, और इसकी ड्यू डेट होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर। बट अब जीएसटी काउंसिल की जो 50th मीटिंग हुई है इसमें डिसीजन लिया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ बिग न्यूज एंड गुड न्यूज फॉर अस स्टेक होल्डर्स। दूसरी बात है कि सर इसमें और क्या बुरी खबर है, ये तो आपने अच्छी खबर बता दी कि बुरी खबर क्या है। बुरी खबर यह है कि अगर आपने आईटीसी जीएसटीआर 2B से ज्यादा ले लिया है तो अब आपको एक इंटीमेशन आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया। उस रूल का नाम है रूल 88D, डी फॉर दिल्ली, राइट। इसका मतलब अब आपको इस मिसमैच का, या फिर जो आपने ज्यादा आईटीसी लिया है, जीएसटीआर 2B से ज्यादा आईटीसी अगर आपने अवेल कर लिया है तो आपको एज पर रूल 88D के अकॉर्डिंग एक कारण बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, जो कि एक बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात है। ये अलग से आपके लिए कंप्लायंस इश्यू बन चुका है। तो बुरी खबर तो आपका जीएसटीआर 2B के लिए आपको एक कारण बताना पड़ेगा, और अच्छी खबर है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर एम आई करेक्ट फॉर द बोथ पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, एडिंग ऑन टू योर फर्स्ट पॉइंट जो आपने एनुअल रिटर्न के लिए कहा, वो एक्चुअली बेनिफिट पहले भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एक्सटेंडेड है। करेक्ट। रिकमेंडेशंस ये हैं कि उसको फर्दर 22-23 के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाए, और मान के ये चलिए कि ये हमेशा एक्सटेंडेड रहेगा अप टू टर्नओवर फॉर 2 करोड़, ओके। क्योंकि इट इज part of the law. They have to make a change via a notification. That is how GST has recommended it, council has recommended it, and then ये फिर notification के through act में change हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे भी ऐड ऑन करते हुए मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखिए इसको इस नजरिए से मत देखिए कि क्या बुरा है क्या सही है। जीएसटी का प्राइम फोकस ये था कि कोई भी डिस्प्यूट खड़ा ना रहे, और उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए वो चीजें स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। तो पहला स्टेप ये कि आपने कहा कि 2A और 3B के बीच में मिसमैच पे आपको इंटीमेशन आ जाएगा। सिमिलरली उन्होंने प्रपोज किया है कि 1 और 3B के बीच में भी अगर आपका डिफरेंस रहा, जो टर्नओवर है उसमें भी अगर आपका कोई डिफरेंस रहा तो उसमें भी आपको इंटीमेशन आएगी और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए शायद सर रूल 88C है, राइट, जीएसटीआर 1 और 3B के रिगार्डिंग। एग्जैक्टली, वो रूल अभी देखिए, पहली बात तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं, this will be followed by circular and notifications, right? So not diving too much into the technicalities of the concepts, हम ये डिस्कस करें ब्रॉडली कि क्या उन्होंने रिकमेंड किया है कि हाँ ये होना चाहिए। तो नो डाउट मैं बस आपको उतने पॉइंट पे करेक्ट करना चाहूंगा कि इसको ये मत देखिए कि क्या गलत है क्या सही है, सब चीजें सही ही हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में। ग्रेट सर। सर एक रूल है, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन मेरा है कि रूल 10A जिसमें भी अमेंडमेंट आया है बैंक डिटेल्स के रिगार्डिंग, उसको भी आप डिस्क्राइब कीजिएगा सर। हाँ, ये ब्रॉडली मैं आपको उसमें ये कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अभी स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस की हो चुकी है। अभी आपने पीछे न्यूज में पढ़ा होगा कि उन्होंने कुछ ड्राइव चलाई थी वेरिफिकेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन को। तो ये सब चीजें जो रिकमेंडेशंस रजिस्ट्रेशन से पर्टिकुलरली जो आ रही हैं वो उसी के लाइन में है, टू कर्ब द फेक क्रेडिट्स और फ्रॉडुलेंट क्रेडिट जो पास ऑन किया गया है। तो जो 10A में आप प्रपोज रूल्स का अमेंडमेंट की प्रपोज कर रहे हैं, शायद वो अब ये प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है। अभी वो पायलट चलना है पौंडीचेरी में,
गुजरात और मेरे ख्याल से दमन एंड दीव के बाद में। वो Okay. पायलट ऐसा है कि आधार ऑथेंटिकेशन बैंक वेरिफिकेशन होगा और उसमें बायोमेट्रिक्स के थ्रू वेरिफिकेशन होना है। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेरिफिकेशन करते हैं बैंक का, पहले तो सिंपली आपने डिटेल डाल दी थी तब वो वेरीफाई हो जाता था। फर्दर उन्होंने उसको आधार के ओटीपी बेस पे किया है। अभी वो मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक बेसिस पे उसको लाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। ओके ओके ग्रेट। सर एक और यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ है आरसीएम के रिगार्डिंग, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देते हैं तो पहले ये रूल था कि दिस विल बी गो अंडर द आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो इसको डिस्क्राइब कीजिए। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा। उसमें इतने पार्ट पे क्लैरिफिकेशन है कि अगर डायरेक्टर कोई रेंटल प्रॉपर्टी देता है कंपनी को रेंट पे, तो उसके रेंट के ऊपर आरसीएम पेबल नहीं आएगा। अदर देन दैट, अगर वो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, दैट विल स्टिल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम टू द कंपनी। Okay, so it is regarding the renting of the immobile property. रेंटिंग But ऑफ अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, यस करेक्ट, यस, बट वो पर्सनल कैपेसिटी में रह रहा है तो ये एज इट इज रहेगा, वो कंटिन्यू करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। ओके 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 ग्रेट। सर एक एमनेस्टी स्कीम थी रिगार्डिंग द जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 10, इसको भी एक्सटेंड किया आई थिंक। वो एक्सटेंड कर दिया है अगस्त 31 तक। ये अभी 30 जून तक था, बट अब इस एमनेस्टी स्कीम को आप अवेल कर सकते हो टिल 31 अगस्त 2023 से। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर आप बताना चाहोगे इस काउंसिल में जो मीटिंग? देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दो चीजें आपने कवर कर ली है जो मैं डिस्कस करना ही चाह रहा था कि आपका 1 और 3B के बीच में मिसमैच, 3B और 2A के बीच में मिसमैच। उसके बाद एक इंटीमेशन वो लोग और लाने वाले हैं शायद, जो जीएसटीआर 9 के नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए भी वो एक ऑटोमेटेड इंटीमेशन की प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं कि वो जैसे 3B का नॉन फाइलर जाता है हमारा रेगुलर बेसिस पे, वैसे वो 9 के भी नॉन फाइलर्स का इंटीमेशन भेजने वाले हैं। एक ये चीज प्रपोज करी है। दूसरी चीज ऑन अ लाइटर साइड ये प्रपोज हुआ है कि न्यूज में भी बड़ा चला है कि सिनेमा हॉल्स में हम लोग खाना नहीं ले जा सकते, वो खाने के ऊपर एक बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तो शायद उस पे सिनेमा हॉल में डिस्प्यूट खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी उस फूड एंड बेवरेजेस को 5% की कैटेगरी में ले आए। तो शायद ये सिनेमा हॉल्स के साथ में जो एक डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत महंगा खाना भी मिलता था अंदर जाके, तो शायद वो एक प्रपोज हो जाए चेंज में। हाँ जी। तो सर पहले जो आप बोल रहे कि सिनेमा हॉल में जो फूड बेवरेज मिलता है उस पे पहले 18% था, 28%? 18% था, बट इट इज रिड्यूस बाय द 5%। अब ये 5% पे वो लगेगा, जैसे बाहर रेस्टोरेंट पे लगता है तो वो जैसे बाहर एट पार रेस्टोरेंट के नहीं किया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में और भी चीजें लगती हैं, वो होटल में है नहीं है, 5,000 से ऊपर का रूम रेंट है नहीं, वो अलग चीज है। बट इसके लिए स्पेशलाइज कैटेगरी करके मेरे ख्याल से 5% का रेट उन्होंने प्रपोज कर दिया है। 5%। एक बेनिफिट उन्होंने और एक्सटेंड किया है जीटीए को। जीटीए पहले तो आरसीएम में था जीटीए, फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में भी ले आए। अब फॉरवर्ड चार्ज में उन्होंने बीच में एक बोला था कि एनुअली जीटीए को डिक्लेरेशन फाइल करनी है। करेक्ट। वो एनुअली के बजाय उन्होंने वन टाइम कर दी है कि जीटीए अगर एक बार डिक्लेरेशन फाइल कर देता है कि मेरे को आरसी फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करनी है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन डिक्लेरेशन henceforth and he will need not be filing declaration again and again on an yearly basis. Okay, so transporter will not be required to file declaration for paying GST under forward charge every year. Every year. It is not required every year. Only once. Once a year. Once a year. Okay, तो पहले कैसा होता था, मंथली सर? नहीं, मंथली नहीं, साल में स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले आपको मई के 30 तक आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। Okay. उसके बाद आई डोंट थिंक सो कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग इज गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ पीपल, बट ये बहुत मेजर डिस्कशन चल रहा था काफी टाइम से, जिस पे जीओएम भी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जीएम किसी कंसेंसस पे पहुंची नहीं, तो उन्होंने कहा कि सबको 28% पे कर दो। हो सकता है वो आगे रेगुलराइज होकर 18 या 12% पे हो जाए, पर अभी तक का यही है। फ्रॉम द टैक्स प्रोफेशनल्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जीएसटी ट्राइब्यूनल्स की बहुत वेट कर रहे हैं। मतलब अभी ये मेजर वर्क, हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम आ गया है। उस पे एक स्टेप धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे हैं। एक स्टेप उन्होंने अब ये ले लिया है कि जो फाइनेंस एक्ट में इन्होंने चेंजेस किए थे जीएसटी ट्राइब्यूनल रूल से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है 1 अगस्त 2023 से।
और फर्दर डिस्कशन शायद स्टेट ट्राइब्यूनल्स की बेंचेस के बारे में भी हुआ है। तो अभी उन्होंने ये प्रपोज किया है कि उसको फेज मैनर में करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट। से फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक ही सफिशिएंट है, साइज छोटा है। महाराष्ट्र में साइज बड़ा है तो हो सकता है 2 या 3 ट्राइब्यूनल बन जाए स्टेट वाइज। तो ये एक स्टेप फर्दर है। अभी भी टाइम उन्होंने 6 से 8 महीने का दिया है, देखिए कितनी जल्दी फॉर्म होती है, क्योंकि ये एक मेजर सेटबैक है जीएसटी के स्ट्रक्चर के लिए कि अभी तक ट्राइब्यूनल फॉर्म नहीं हुई है। उसके बाद एक और चेंज जो डिस्प्यूटेड चल रहा है बहुत टाइम से इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रॉस चार्ज। ये कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए अगर आपके पास में कोई कॉमन इनपुट क्रेडिट आ रहा है और आप रिलेटेड पार्टीज के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 2 वे ट्रांजैक्शन। गिव मी 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। होता क्या है सर, आप एक हेड ऑफिस है, बिलिंग सारी आपके हेड ऑफिस पे आती है, इनपुट सर्विस की ब्रांचेस हैं आपकी, कॉमन ब्रांच से। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट अकाउंटिंग का ही बिल ले लीजिए, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी, कॉस्ट अकाउंटिंग का एनुअल रिपोर्ट दी और बिल कंपनी के हेड ऑफिस पे दे दिया। अब कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस, लोकेशन, फैक्ट्रीज हो सकती हैं जहां से रिलेटेड आपने सर्विसेज दी हैं, देखा जाए तो बिल तो एक ही है। अब वो आईएसडी के थ्रू, नॉर्मली सर्विस टैक्स लोग में भी हम लोग ये करते थे, आईएसडी के थ्रू उस बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सर्विस क्रेडिट। जीएसटी में हर कोई ब्रांच अपने आप पे इंडिपेंडेंट पर्सन है सर, सबका रजिस्ट्रेशन है, सबका बिल्कुल। तो ये आईएसडी का कंसेप्ट है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन इस पार्ट पे दी है कि आईएसडी मैंडेटरी नहीं है पुराने पीरियड के लिए, और आईएसडी अब वो मैंडेटरी करेंगे प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए आगे से। इसमें दूसरा झगड़ा एक इस चीज का है कि क्या आईएसडी करना है, क्या क्रॉस चार्ज करना है। तो इस मुद्दे पे कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। हम उम्मीद, क्रॉस चार्ज भी अगर लॉ को आप पढ़ें उसी इंटेंट से, जिस इंटेंट से लॉ लिखा गया है, तो क्रॉस चार्ज कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 सीजीएसटी का अगर आप देखेंगे, उसमें जो क्लॉज 2 है वहां पर ये मेंशन करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस के बीच में करी गई है, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो मान लीजिए हेड ऑफिस अकाउंटिंग सेंट्रलाइज करता है अपनी सारी फैक्ट्रीज और ब्रांचेस की, तो एक तरह से ये माना जाता है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को सर्विसेज दे रहा है। तो इसलिए हेड ऑफिस ने वो जो सर्विस दी है उसको रिकवर करना है क्रॉस चार्ज के थ्रू। तो ये असमंजस बना हुआ है, ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि आईएसडी करें या क्रॉस चार्ज करें। तो उम्मीद है जो सर्कुलर प्रपोज किया है इन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए, उसमें ये चीज डिस्कस करके इसको क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद कुछ सर्कुलर्स इन्होंने प्रपोज किए हैं रिफंड के प्रोसेस से रिलेटेड। ये रिफंड के प्रोसेस में 3 चीजें इन्होंने प्रपोज करी हैं। पहली चीज ये है कि जो लिमिटेशन होती है एक्यूमुलेटेड क्रेडिट पे, कि कितने जितना 3B में दिख रहा है उतने पीरियड का ही क्रेडिट लिया जाए। अभी तक उसमें ऐसा है फॉर द 2B में अभी में उसमें ऐसा है कि इट इज फॉर द टैक्स पीरियड। अब वो उसको आई थिंक प्रपोज करके फर्दर लेनदेन करना चाहते हैं फॉर एनी टैक्स पीरियड, क्योंकि 3B में या 2A में जो क्रेडिट आपका गिर रहा है, इट इज नॉट ओनली पर्टेनिंग टू दैट पीरियड, इट पर्टेन्स टू प्राइवेट पीरियड्स आल्सो एट पॉइंट इन टाइम। एक ये क्लैरिफिकेशन। दूसरा एक इशू अभी हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, विच इज इन रिलेशन टू द एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्रीगेट टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है, इसके ऊपर सर्कुलर आएगा। दूसरा मुद्दा, इसमें पर्टिकुलरली एक इशू उठा है जो हाईकोर्ट तक भी गया है कि वैलिड है कि नहीं है। उसमें इन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डोमेस्टिक प्राइस क्या है, डोमेस्टिकली आप कितने प्राइस पे बेचते हैं, उसके एट पार क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिफंड डिटरमाइन होना था। तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद है, देखिए कहाँ ये चीज मुद्दा सेटल होगा। तीसरा है कि जब अगर एक नया रूल आया था विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2021 प्रोबब्ली, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि अगर आपकी फॉरेन रिसीट्स नहीं आती हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो आपको रिफंड आपका वापस करना है। तो इसके ऊपर फेमा की गाइडलाइंस के अंदर आपको 9 महीने के अंदर अंदर पैसा एक्सपोर्ट का रिपैट्रिएट करके लाना होता है। तो जीएसटी ने नया रूल निकाला था कि अगर आप वो 9 महीने के अंदर अंदर पैसा रिपैट्रिएट करके नहीं लाए
तो आपको रिफंड वापस करना पड़ेगा जो आपने रिफंड लिया है। अब हम्म। इसके ऊपर भी दे प्रपोज्ड क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर। तो ये रिफंड से रिलेटेड है। एक इन्होंने वारंटी में जो स्पेयर पार्ट्स दिए जाते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करता। अगर वो ओके। जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा तो उससे रिलेटेड जो इनपुट लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, या उसको एग्जाम मारते हुए प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर रिकमेंडेशन ये है कि उसके ऊपर रिवर्सल ना बने। ये सर्कुलर अभी लेट्स सी व्हाट द सर्कुलर सेज अबाउट इट। दिस इज व्हाट हैज बीन। तो ब्रॉडली एक और चीज है, अभी ये उठे नहीं उठे लिटिगेशनल इशू है। ट्रान 1, अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद में वापस से पोर्टल खुल गया था। अब उस ट्रान 1 में भी बड़े सारे लिटिगेशंस आ रहे हैं, और वो लिटिगेशन जनरली सेंटर की तरफ से है, स्टेट की तरफ से कम है। तो उसमें क्या है, इन्होंने मैनुअल अपील फाइलिंग प्रोसेस इनिशिएट किया है, और ये भी प्रपोज किया है कि कुछ केसेस में मैनुअल अपील जीएसटी में फर्स्ट अपीलेट में अलाउ। तो ब्रॉडली सर ये रिकमेंडेशंस हैं, और कुछ ई-वे बिल के ऊपर क्लैरिफिकेशन आने वाली। हाँ, ई-वे बिल आई थिंक नाउ दे आर स्टार्ट proposing to impose e-way bill for intrastate movement of gold and precious metals. तो उसके लिए भी इन्होंने प्रपोज कर दिया है। उसके बाद ई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आप करते हैं तो उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन आएगा कि शायद उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ई इनवॉइसिंग प्रपोज हो ही चुकी है 2 करोड़ तक, मोस्ट लाइकली सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ तक भी वो हो जाएगी शायद। दिस इज गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। Otherwise, sir, mostly things have been covered. ये most major coverage है चीजों की। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो अगर। सर टैक्स इनवॉइस के ऊपर भी कुछ ऐसा है कि स्टेट का नाम ही मेंशन रहेगा, ऐसा करके कुछ है इसमें? नहीं सर, वो जो चीज आई है वो आई है ओनली एंड ओनली फॉर ये जो ओडीडी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज हैं। What is, I am not recollecting the full form of that. OIDR service, OIDR services जो है वो उसकी चीज के लिए है, not for everyone. Okay, so this is for the OIDR service. Only for OIDRs, OIDR Online services. data accessible retrieval services. Right. Okay, okay. सर एक डिस्कस मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने डिस्क्राइब किया था कि सिनेमा हॉल में अगर कोई फूड और बेवरेज सेल होते हैं तो उस पर 5% जीएसटी प्रपोज है। बट यहाँ पे मैं प्रेस रिलीज में पढ़ रहा हूँ कि द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज क्लब टुगेदर द जीएसटी रेट ऑफ सिनेमा टिकट विल बी अप्लाई। यस, मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। हाँ, देखिए जनरली आप टिकट बुक करते हैं तो वो ऑप्शन आपको देता है कि आपने फूड वुड करना है कि नहीं करना है, तो वो प्रिंट होके एक ही टिकट के ऊपर आएगा। करेक्ट। तो उस समय वो वही रेट उठाएगा जो सिनेमा टिकट का है। ओके। अदरवाइज आपने खाली टिकट बुक करी है और सिनेमा हॉल के अंदर आपने फूड एंड बेवरेज लिया है, तो जो वो आउटलेट है वहां पे जो चार्ज करेगा आपको 5% ही चार्ज करेगा। ओके। जनरली सिनेमा पे आई थिंक इट इज 12% और 18%, व्हिच इफ आई करेक्टली रिमेंबर 12 या 18% पे शायद। हाँ, तो इस पे प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा हॉल टिकट हो गया, तो एज पर प्रिंसिपल सप्लाई इस पे जीएसटी रेट लग जाएगा। तो ये तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कंपोजिट सप्लाई होगी सर। अगर एक से ज्यादा अगर आप गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सर, सेक्शन 10 में जो सप्लाई होगी उसकी रेट, राइट? तो ये आप 8 इसको अपन कंपोजिट सप्लाई बोल सकते। ओके, करेक्ट। इसके बाद में सर एक सेक्शन है, सेक्शन 122A, जो कि स्पेशल पेनल्टी का रिगार्डिंग है। मैन्युफैक्चरर अगर टबैको है और पान मसाला है तो इसके लिए कुछ नया प्रॉब्लम? मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। सेंट्रल एक्साइज के टाइम पे टबैको और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो चलती थी कॉम्पोजिशन लीवी चलती थी, कंपाउंडेड लीवी जिसे हम कहते थे, कैपेसिटी बेस्ड हुआ करती थी, प्रोडक्शन बेस्ड। तो सर वो पेनल्टीज वगैरह इन्हें प्रपोज करी है। I have not gone into detail in that. Let the circular come out, let the provisions come out as to regard कि उसमें होने वाला क्या है। वो नॉन फाइलिंग मशीन की डिक्लेरेशन आपने नहीं दी तो उन्होंने पेनल्टी प्रपोज कर दी है। एक्चुअली उसमें होता क्या था कि आपने अपनी मशीन्स को डिक्लेयर करना होता था, कितनी मशीन्स चल रही हैं, कितनी चलती है, उनकी कैपेसिटी क्या है। उसके बेस पे ऑटोमेटिकली ये डिटरमाइन हो जाता है कि ये इतने घंटे चली है और इतने घंटे आपकी प्रोडक्शन हुआ है, तो ड्यूटी आपकी उस हिसाब से डिटरमाइन हो जाती थी। तो उसकी नॉन डिक्लेरेशन के लिए हमें उन्होंने पेनल्टी प्रपोज कर दी है। लेट द लॉ कम, लेट द लॉ बी सेटल्ड एज टू व्हाट दे आर प्रपोजिंग, देन probably we can discuss it much better. It is too early a stage to discuss it right now. Correct.
सर जो कार के रिगार्डिंग, अगर व्हीकल से रिगार्डिंग बात करूँ, एक्सयूवी और एमयू जो कार्स है उस पे एडिशनल सेस 22% भी प्रपोज किया है इस पे। शायद आई हैव नॉट गॉन इनटू डिटेल इन दैट सर। बट यस, प्रेस रिलीज में अगर मैं पढ़ता हूँ तो इसमें एडिशनल सेस और किया गया, 22% इस पे एडिशनल सेस लगेगा। अगर एक्सयूवी और एमयू व्हीकल्स परचेज करते हो तो इस पे ये अलग से बर्डन है, एडिशनल सेस 22%। अगर मैं एग्जाम्पशन की बात करूं तो जैसे कैंसर ड्रग्स है, कैंसर की जो ड्रग्स है, मेडिकल मेडिसिन है, उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। इनको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। बाकी तो अगर ऑनलाइन गेमिंग है तो उसको भी 28% के दायरे में इसको लेकर आया गया। 28%, 28%। रेट जीएसटी की लगेगी अगर आप ऑनलाइन गेमिंग है और उस पर 28% जीएसटी इस पे लगेगा। बाकी तो मोस्ट प्रोबेबली सर ने कवर कर दिया। कसिनो पे अगर आप चिप्स परचेज करते हैं तो वो भी हाईएस्ट रेट लगेगी 28%। ऑब्वियसली ये तो लग्जरी के रिगार्डिंग सर हाँ डिपार्टमेंट सर, ने आप इसमें और भी हम तो बेटिंग करने अब जाते नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो ज्यादा इसमें आइडिया भी नहीं है और इसमें पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है सर। जरूरत नहीं है, करेक्ट। इस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ता सर जनता को, ऑब्वियसली जनता वहां पे जनरल हाँ, जनरल टैक्स पेयर को कोई इफेक्ट है नहीं है सच। हाँ। अच्छा, एक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रूल 10 है जो कि बैंक डिटेल से रिगार्डिंग है। तो पहले प्रोविजन था कि आपने अगर बैंक डिटेल एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इंसर्ट नहीं किए बैंक डिटेल तो आपको विद इन 45 डेज या फिर जीएसटीआर 3B में विच एवर अर्लियर तक आपको फाइल करनी होती है, मतलब राइट। वहां पे अपडेट करनी होती है। बट अब ये चेंज हो गया, 45 दिन की जगह 30 दिन हो गया और जीएसटीआर 3B की जगह जीएसटीआर 1 हो गया, राइट। तो 30 दिन और जीएसटीआर 1 विच एवर अर्लियर आपको ये बैंक डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी करंट अकाउंट की। ओके। अगर आप फाइल नहीं करते हो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम तो एक रूल 21A है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसल्ड और सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बहुत एक कह सकते हैं अपन इसको कंपलसरी है ये, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बैंक डिटेल या तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालिएगा, अगर नहीं डालेगा तो आप विद इन 30 डेज और जीएसटीआर 1 विच एवर अर्लियर आ रहा तो वहां पे डालेगा। नहीं तो एज पर रूल 21A में चेंजेस किए गए हैं कि अगर आप प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में नहीं करते हो फॉलो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट इंटीमेशन। मेरे हिसाब से तो सर वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, एंड अगर आपको कुछ और बताना हो तो इसमें सर। नहीं महेंद्र जी, मोस्टली तो चीजें कवर हो चुकी है। आई थिंक अगर कोई जो यहाँ कनेक्ट किए हैं उनको कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चन we है can आपके discuss on तो that. हाँ, यू कैन रेज दिस क्वेश्चन। सर एक आया था कि टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इज टू बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट। ऐसा कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सर ये भी क्या है कि रेगुलर लिटिगेशन गई है हाई कोर्ट्स में कि जनरली क्या होता है कि आपको इंटीमेशन आ जाता है पीवी का, फिजिकल वेरिफिकेशन का। नहीं, अब वो इंटीमेशन कहाँ आता है, क्या आता है, हमने आज तक किसी क्लाइंट के केस में देखा नहीं है। राइट। पर ऑफिसर जरूर पहुंच जाते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, जी हमने वेरिफिकेशन करनी है। कई केसेस में क्या होता है सर, मान लीजिए जो वर्चुअल ऑफिस चला रहे हैं उनका फिजिकल प्रेजेंस वहां होता तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते थे। तो हाई कोर्ट ने रेगुलरली ये बोला है कि अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, दैट हैज टू बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, यू हैव टू गिव एन इंटीमेशन टू हिम कि हम इस दिन फलाना टाइम पे पीवी करना चाहते हैं। तो ये उसी का वो रिजल्ट है कि नाउ दे हैव ब्रॉट इन अ प्रोसेस कि भाई वो पहले आई थिंक एक नोटिस देंगे बकायदा कि हम इस दिन आना चाहते हैं और आपकी प्रेजेंस में हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो शायद वो इस तरह से प्रपोज किया है। लेट अस सी हाउ इट कम्स। ओके, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में, इनका नाम नहीं है, मतलब मोबाइल से नाम कर रखा है। ये बोल रहे हैं कि जीएसटी रेट चेंज कौन करता है? तो सर जीएसटी रेट एक्चुअली क्या होता है, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया जाता है और ये रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल तो केवल रिकमेंड करती है, बट फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेती है, राइट। जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, और 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल बना दी थी।
और जीएसटी काउंसिल को जो चेयर करता है, हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी के जितने भी स्टेट होते हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उनके मेंबर होते हैं। तो डिसीजन जो लिया जाता है दोनों को लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें तो अनबाइस्ड की कोई बाइस की तो कोई बात है नहीं, और इसमें भी डिसीजन भी मेजोरिटी से लिया जाता है। टोटल जो डिसीजन होता है 3/4 होता है 75%। अगर हम स्टेट की बात करें तो 2/3 होता है, और सेंट्रल की बात करें तो 1/3। तो इसमें सभी का यहाँ पे एक तरह का मेजोरिटी होती है, तब जाके डिसीजन लिया जाता है, और ये रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानती है, क्योंकि चेयरपर्सन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। तो ऑब्वियसली यही इनके मेजर डिसीजन लेते हैं। अगर कोई टैक्स को अमेंडमेंट करना हो, या फिर टैक्स को एग्जम्प्ट करना हो, या किसको टैक्स के दायरे में लाना हो, तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर और भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बाकी तो वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन द इजी लैंग्वेज। सो सर, आई वुड लाइक टू अगेन से थैंक्स to come on this platform and describe your view in the very easy language. I hope. एक और क्वेश्चन आया दिनेश गुप्ता जी का, प्लीज एक्सप्लेन द चेंज ऑफ रिफंड ऑफ IGST ऑन एक्सपोर्ट सेल्स। सर, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि लेट अस वेट फॉर द सर्कुलर रिफंड से रिलेटेड, वो जो चेंजेस लाने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉडली प्रेस रिलीज में जो लिखा है वो 3 चीजें के ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की बात करी है। कोई प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, इट विल बी अ क्लैरिफिकेशन। तो रिफंड का जो प्रोसेस है एज सच रहने वाला है, पर उसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, और कुछ नहीं। ओके, ग्रेट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड होप एवरीवन एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Mahendra ji, for inviting me again, and I look forward to meeting you again virtually and physically as well. Thank you sir.